پھر وہی ہوا جس کی پیش گوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب ایک اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی امیم الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک اسلامی فوج نے دمشق، اردن اور حمص پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے کیسر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل ہی کیا گیا، اور نہ ہی ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یہ کیسے فاتح ہیں جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کے پیراہن کو چاک نہیں کیا، ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرایا اور ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ زندگی کی یہ رعایتیں تو، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں ہر کل اعظم یعنی کہ کیسر روم نے بھی نہیں بخشا تھا۔ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت کیسر روم کے دربار میں کچھ اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے۔ وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی ایک تصویر بنے ہوئے تھے۔ کیسر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والو، آخر تم پر کیا آفتاب پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہر کل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر آفتاب نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوا کر۔ فریادیوں کی یہ گریہ وزاری دیکھ کر کیسر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فرمایا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیاں لیتے ہوئے یہ جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، صلیب کی بیٹیاں بے ایمان ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح سے کھینچا کہ کیسر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلودہ لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جاتی۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ کیسر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ کیسر روم رات بھر سکون سے سو نہ سکا، بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھرا نظر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ کیسر روم نے بڑی ہی حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی کیسر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں آمدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانش مند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے تو کیسر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسر روم نے شدید ناگواری کے لہجے میں پوچھا۔ ہر کل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔
हाजरीन में अंताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। उसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो भी हर कुल्ले आज़म से नज़रें चुरा रहा था। कैसर रोम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाज़ा कर लिया और फिर बुलंद आवाज़ में उसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दमिश्क, उर्दन और हम्स के महाजों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? उसने अपने नाम लेवियों को बेयारो मददगार क्यों छोड़ दिया? पादरी शहराम ने अपने शहंशाह की तरफ देखा और बुझे हुए लहजे में बोला, हर कुल्ले आज़म, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोग भी शिकस्त खा जाते हैं। खुदावंद खुदा अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से मेरा दिल मुतमिन नहीं हुआ और ना ही मेरा दिमाग। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी ज़रूर मौजूद है जिस पर मसलिहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसर रोम की बात सुनकर हाजरीन की गर्दनों का खम कुछ और नुमाया हो गया। कुछ देर तक दरबार की फिजा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। ये अंताकिया का एक मुअज़्ज़ज़ और नेक नाम ईसाई ऐमन था। इसने बावक़ार लहजे में कैसर रोम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने सच फरमाया है कि हम में कहीं ना कहीं कोई खराबी मौजूद है। आज मैं इस खराबी को इस मजलिस ख़ास में सुनना पसंद करूँगा। कैसर रोम के लहजे से बदस्तूर तलखी झलक रही थी। हर कुल्ले आज़म, इस बात का यकीन दिलाएं कि मुझे सच बोलने की सज़ा नहीं दी जाएगी। ऐमन के चेहरे से हल्का सा खौफ झलक रहा था। आज तुम्हारी ज़ुबान पर कोई पाबंदी नहीं है, कैसर रोम ने पुरजलाल लहजे में कहा। जो कुछ तुम कहना है बेखौफ होकर कह डालो, तुम्हारे लिए अमन और सलामती है। कैसर रोम की तरफ से इजाज़त मिलते ही ऐमन ने इंतहाई पुरसूज लहजे में कहना शुरू किया, हर कुल्ले आज़म को मालूम होना चाहिए कि दमिश्क, उर्दन और हम्स से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। ये कहकर ऐमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाज़रीन मजलिस की दिली कैफियत का जायज़ा लेने लगा। इस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर ऐमन के लिए नफरत का रंग झलक रहा था, मगर कैसर रोम के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। उसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, ऐमन, तुम अपना बयान जारी रखो। दमिश्क और उर्दन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज और दोस्त रहते हैं। उनमें खूबसूरत जवान औरतें और दुशीज़ाएं भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक दोस्त अंताकिया आया था। उसने मुकद्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया है कि उन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जान और माल, इज़्ज़त व आबरू मुकम्मल तौर पर महफूज है। एक बार फिर हाज़रीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो ऐमन की ज़ुबान से मुसलमानों की वहशत और दरिंदगी के फर्जी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब ऐमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान में लाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया, तो उनके सीनों में नफरत व असबत के आग के शोले भड़कने लगे। इसके बरअक्स कैसर रोम के चेहरे पर हैरत व सकूत के रंग नुमाया था। ऐमन ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हर कुल्ले आज़म, मैं निहायत अज़ियत व करब और नदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा कि हम में से अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी ही बेहयाई से उसे तोड़ देते हैं, ज़ाइफों को सताते हैं और कमज़ोरों पर जुल्म ढाते हैं। उसके बरअक्स मुसलमानों का ये हाल है कि जब किसी से अहद कर लेते हैं तो उसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनका इखलाक हमसे कहीं ज़्यादा बुलंद है और उनका सलूक हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। वो रात को इबादत करते हैं और दिन में रोज़ा रखते हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं ढाते बल्कि अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ़ कर देते हैं। उनके यहाँ रंगो नस्ल और कबीला और ख़ानदान की कोई तफरीक नहीं है। वो सब आपस में बराबर हैं, इसलिए मुसलमानों के हर काम में जोश और इस्तक़लाल होता है। अगर मैंने दमिश्क, उर्दन और हम्स की शिकस्त से सबक हासिल करके अपने किरदार नहीं बदले तो
ایمن نے जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी, मगर कैसरे रोम के साथ तमाम हाज़रीन मजलिस भी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर वही हुआ जिसकी तरफ एमन ने इशारा किया था। रोमी ईसाइयों ने अपनी आदतें नहीं बदली, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी हुकूमत बदल डाली। मुसलमानों की मुसलसल फतूहात की खबरें सुनकर कैसर रोम मुकम्मल तौर पर घबरा गया और फिर उसने बड़ी उजलत के साथ शाम छोड़कर कुस्तुनतुनिया जाने का फैसला कर लिया। जब अंताकिया और गिरदो नवाह के ईसाइयों को बादशाह के इरादे की इत्तला मिली तो वो कतार दर कतार महल के सदर दरवाजे पर जमा होकर ये गुरिया वजारी करने लगे। ये मंजर देखकर कैसरे रोम की मजहबी गैरत ने जोश मारा और फिर उसने मुसलमानों से मुकाबले का ऐलान कर दिया। फौरन ही बरक रफ्तार कासिदान इलाकों की तरफ रवाना कर दिए गए जो कैसरे रोम के ज़ेरे नगीं थे। हर कुल्ले आज़म ने तमाम ईसाई हाकिमों के नाम एक ही फरमान जारी किया था, ईसाइयत को मुसलमानों से शदीद खतरा लाहिक है, सलीब तुम्हें पुकार रही है। कैसरे रोम के इस फरमान ने ईसाइयों के मजहबी जज्बात में आग लगा दी और वो तूफान बर्क वबा की तरह अंताकिया पहुंच गए। रोमियों की पुरजोश जंगी तैयारियां देखकर लश्कर इस्लाम के सलार हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम फौजी अफसरों को तलब करके उनसे मशवरा किया कि इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। हर अफसर ने अपने जहन की रसाई के मुताबिक मुख्तलिफ राय पेश की। बिलआखिर तवील बहस के बाद अमूर जंग के सारे माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुख्तलिफ महाजों पर तैनात मुसलमान सिपाहियों को एक मुकाम पर जमा कर लिया जाए। नतीजतन तमाम मुजाहिदीन इस्लाम दमिश्क में यकजा हो गए। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकबूजा इलाकों के ईसाई मर्दों को एक तवील व अरीज मैदान में जमा करके उनसे मुख्तसर खिताब किया। हमें अफसोस है कि हम अपनी बेपनाह मसरूफियात के बायस तुम लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इसलिए जिजिया यानी कि हिफाजती टैक्स की सारी रकम वापस की जाती है। हज़रत अबू उबैदा की तकरीर सुनकर तमाम ईसाई रोने लगे। फिर जब लश्कर इस्लाम दमिश्क छोड़कर उर्दन की तरफ जाने लगे तो सारे ईसाई अश्कबार आंखों के साथ ये दुआ कर रहे थे, खुदावंद खुदा तुम्हें हिफाजत के साथ वापस लाए कि तुम इस ज़मीन पर बसने वालों के लिए अमन सलामती का साहिबा हो। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उर्दन पहुंचकर रोमियो का मुकाबला करने के लिए यरमोक का मैदान मुंतखब किया। यरमोक के करीब ही एक मुकाम दीरुल हील है, यहाँ रोमी फौजी जमा हो रहे थे। उनकी तादाद 2 लाख से ज़्यादा थी। उसके बरअक्स मुसलमान सिपाहियों की तादाद महज 20 और 30 हज़ार के दरमियान थी। पहला मार्का रजब की 15वीं तारीख यानी कि 15 हिजरी में हुआ, जिसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। रोमियो ने कुछ दिन के लिए जंग रोक दी और मसलिहत की तजवीज़ पेश की। हज़रत अबू उबैदा ने सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद को सफ़ीर बनाकर कैसरे रोम के पास भेजा, मगर ये सफारत नाकाम रही। रोमी दोबारा मैदान जंग में नमूदार हुए। अब इनकी बारान का जोश और खरोश वहशत के हदों को छू रहा था। ईसाइयों के वो मुकद्दस राहिब जिन्होंने बरसों से आसमान नहीं देखा था, वो अपनी अपनी इबादत गाहों से निकलकर आम सिपाहियों में शामिल हो गए थे। कुछ पादरियों पर जनूनी कैफियत तारी थी। वो हाथों में सलीबे उठाए ईसाई लश्करों के आगे आगे थे और चीख चीख कर अपने हम कौमों की हिम्मत बांध रहे थे। आगे बढ़ो और सफ़ाए हस्ती से मुसलमानों का नामो निशान मिटा डालो। आज दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे मुकाबले नहीं ठहर सकती, इसलिए तुम्हें हज़रत यसु मसीह की ताईद हासिल है। 3000 रोमी सिपाहियों ने अपने पैरों में बेड़ियां पहन रखी थी ताकि मैदान जंग से फरार होने का ख्याल भी उनके दिलो दिमाग में ना आए। रोमियों की ये तेवर और अंदाज देखकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने नए सिरे से इस्लामी फ़ौज को तरतीब दिया और मुजाहिदीन को 36 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसीब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 2 यहीं पर मुकम्मल होती है।
بہت جلد تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔